Okay, dear student, now this is new problem on your monitor. The problem is textbook problem on page number 172. Prepare a 2-column cash book with the help of following information for January 2018. As usually, the first I will explain the total problem theoretically, and then later on I will solve the problem. So first transaction is on 1st Jan 2018. Started business with cash rupees 1,20,000. So we all are knowing that when businessmen started business and cash brought to the business, it is being called as a capital. So we have to show this transaction to the receipt side of cash book as a capital, and in cash column we have to write 1,20,000, because here the cash brought to the business, and therefore we have to make the effect of 1,20,000 to the cash column. And the next transaction is on 3rd Jan 2018. Cash paid into Bank of Baroda rupees 50,000. So paid is there. This word we have to consider. We have to concentrate on this word paid. So this is paid means we have to make the effect of this to the payment side, to the cash book. Payment side means credit side, and credit side we have to write by Bank of Baroda account, and to the amount column, in cash column we have to make the effect of 50,000, because cash is paid. So we have to make the effect of this payment in the cash column 50,000. In payment side we have to write by Bank of Baroda account. And the transaction on 5th January 2018. Purchase goods from Sakshi on credit. So here the word credit, we have to concentrate on this word credit. Credit का मतलब होता है उधारी पे. यहाँ पे वस्तु खरीदा गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं किया है, ये क्रेडिट पे है, उधारी पे है, उधारी पे है. इसके लिए इसका जो इफेक्ट है वो कैश बुक को नहीं आएगा, because the transaction is made on credit basis, and in cash book only we have to record all cash transaction. So the effect of this transaction, it will go to the subsidiary account in purchase book. But in cash book, suppose we should not make the entry of credit transaction. कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का एंट्री हमको नहीं करना है, इसके लिए इसकी एंट्री नहीं होगी. वी शुड नॉट मेक द इफेक्ट ऑफ दिस टू द कैश.
उसके बाद में द ट्रांजेक्शन ऑन 6th January 2018 sold goods to Divakar and received a bearer check. Again we have to concentrate on the word bearer. बेरर पे एक बात ध्यान देना है, बेरर चेक मतलब पहले हमको इसकी एंट्री कैश में दिखाना है. वी हैव टू शो द इफेक्ट ऑफ दिस बेरर चेक टू द कैश कॉलम. अर्लियर जो ट्रांजेक्शन्स हमने सॉल्व किए हैं उसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया है कि अगर बेरर चेक है देन वी शुड शो द अमाउंट इन कैश कॉलम. तो यहाँ पे सोल्ड किया है, गुड्स को बेचा है, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर. सो वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन टू द रिसीप्ट साइड. व्हाई रिसीप्ट साइड? रिसीप्ट साइड में क्यों करना है इसका एंट्री? क्योंकि गुड्स को बेचा है. आपको जब गुड्स को हम बेचेंगे तो हमको जो बेरर चेक मिल रहा है रिसीव्ड किया है, देयरफॉर वी हैव टू मेक द एंट्री टू द रिसीप्ट साइड. इसीलिए हमको इसकी एंट्री कैश बुक के रिसीप्ट साइड में करना है. तो रिसीप्ट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और उसके बाद में अमाउंट जो ये 20,000 है, दिस 20,000, इसका इफेक्ट हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे. Because clear cut instruction is given, received a bearer check. bearer check है, इसके लिए इसका जो इफेक्ट है ये 20,000 का, ये कैश कॉलम में आएगा. यहाँ पे ध्यान देना है, बार बार मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, बेरर है, बेरर चेक का हम एंट्री सबसे पहले कैश कॉलम में ही दिखाते हैं. उसके बाद में अगर ये ट्रांजेक्शन नीचे कहीं दिया होगा कि ये चेक बैंक में जमा किया, तो उसके बाद में उसका कॉन्ट्रा इफेक्ट करते हैं हम लोग. लेकिन जो फर्स्ट एंट्री है, जो बेरर चेक का अभी जो हम लोग एंट्री मारेंगे वो कैश कॉलम में लिखेंगे. 20,000 का एंट्री कैश कॉलम में होगा. वी हैव टू मेक द एंट्री टू द कैश कॉलम. देन आफ्टर दैट देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑन 10th January 2018. पेड टू साक्षी कैश. ये एकदम सिंपल है. पेड है तो वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस टू द पेमेंट साइड. इसका इफेक्ट पेमेंट साइड में होगा, पेमेंट साइड में दिखाएंगे. पेमेंट साइड का मतलब क्रेडिट साइड, कैश बुक के क्रेडिट में. वहां पे हम लोग लिखेंगे बाय साक्षी अकाउंट, क्योंकि जो अमाउंट पेड किया है वो साक्षी को पेड किया है, तो पेमेंट में हम लोग बाय साक्षी अकाउंट लिखेंगे. और नरेशन, अगर आपको दिया है प्रॉब्लम में कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो नरेशन नहीं लिखना है. तो यहाँ पे पेमेंट साइड में बाय साक्षी अकाउंट, और ये जो 20,000 का जो इफेक्ट होगा तो वो कैश कॉलम में होगा. वी हैव टू मेक द इफेक्ट टू द कैश कॉलम 20,000. Then afterward, a transaction on 14th January 2018. Check received on December 6th 2018 deposited into बैंक. अभी ये ध्यान देना है, यहाँ पे हमको जो चेक हमको 6 दिसंबर को मिला था, December 6 को, वो चेक अभी बैंक में हम लोग जमा कर रहे हैं. तो इसका जो होगा वो कॉन्ट्रा एंट्री आएगा. कॉन्ट्रा एंट्री क्यों होगा इसका? क्योंकि अभी हमको वो चेक कैश से
वो जो ट्रांजेक्शन हमने 6 दिसंबर को, ये देखो ये ट्रांजेक्शन है 6 दिसंबर का, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड ए बेरर चेक 20,000, जो मैंने आपको बताया था कि इसका हमको कैश कॉलम में एंट्री करना है, कैश कॉलम में एंट्री होगा ये। तो ये जो कैश कॉलम में हमने 20,000 एंट्री मारा है, ये 20,000 का, अब इसको हम पहले यहाँ पे 14 दिसंबर को इसको हम फिर से पेमेंट दिखाएंगे। वी हैव टू मेक द इफेक्ट टू द पेमेंट साइड टू कैश बुक, और पेमेंट साइड में 20,000 हम कैश कॉलम में दिखाएंगे, और फिर उसके बाद रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में हम 20,000 दिखाएंगे। तो इसका जो इफेक्ट है दोनों साइड करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा, एक पेमेंट में आएगा और एक रिसिप्ट में आएगा। इसके लिए ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, मोस्टली दिस इज क्लियर कि जो हमने पहले कैश कॉलम में इसकी एंट्री दिखा दी है, अब वो कैश का हमें इफेक्ट पहले खत्म करना होगा। बिना कैश कॉलम का इफेक्ट खत्म किए हुए डायरेक्ट हम लोग उसको बैंक के रिसिप्ट में नहीं दिखा सकते, ये बात ध्यान देना है। डायरेक्ट हम वी कैन नॉट मेक द डायरेक्ट एंट्री टू द बैंक कॉलम अनलेस वी मेक द इफेक्ट टू द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। जब तक हम लोग कैश बुक के पेमेंट साइड में कैश कॉलम में 20,000 का इफेक्ट नहीं डालते, तब तक ये कैश कॉलम का रिसिप्ट वाला 20,000 उसका इफेक्ट खत्म नहीं होगा। इसके लिए पहले हमको पेमेंट में कैश कॉलम में 20,000 की एंट्री मारने के बाद ही वी कैन शो द इफेक्ट टू द रिसिप्ट साइड टू द कैश बुक इन बैंक कॉलम 20,000. So I think now the concept should be clear why this transaction will have contra effect. Then उसके बाद में ट्रांजेक्शन ऑन 18th January 2018, sold goods to Shivaji on credit. यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया है, गुड्स बेचा है शिवाजी को, क्रेडिट पे बेचा है, ये बात ध्यान देना है। घाई घाई में स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसने ट्रांजेक्शन को केयरफुली रीड नहीं किया तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे मेक द इफेक्ट टू द कैश बुक। सो बेटर वी हैव टू रीड द ट्रांजेक्शन वेरी केयरफुली। यहाँ पे क्लियर कट दिया है, सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। शिवाजी को गुड्स बेचा है लेकिन उधारी पे बेचा है। नाउ दिस इज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, वेदर वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन टू द कैश बुक और नॉट। Of course the answer will be no sir. Why? Because this transaction is credit transaction, क्योंकि ये credit transaction है and we are preparing the cash book, and suppose in cash book only cash transaction we have to record, and therefore here we should not record the credit transaction. So this transaction will not have the entry to the cash book. Now the second question, अगर हम लोग इसका कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं तो बिजनेसमैन इसकी एंट्री कहां पे करेगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं दिखाते हैं तो बिजनेसमैन इसकी एंट्री कहां पे करेगा। ऑफकोर्स आंसर है कि सर इसकी एंट्री हम लोग सब्सिडरी बुक में करेंगे और वो सब्सिडरी बुक में सेल्स बुक में इसकी एंट्री जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है सब्सिडरी बुक में 4 बुक हम लोग बनाते हैं। कौन कौन सा बुक बनाते हैं, परचेस बुक बनाते हैं, परचेस रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं और सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो आपको कहां पे जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा, क्योंकि गुड्स को बेचा है, गुड्स को सोल्ड किया है।
So the effect will go to the sales book account. सेल्स बुक में जाएगा, तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी. सपोज वी मस्ट नॉट मेक द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन टू द कैश बुक. तो कितने ट्रांजेक्शन अभी तक हो गए जिसका इफेक्ट हमको कैश बुक में नहीं मारना. ये देखो, ट्रांजेक्शन जो 5 जनवरी 2018 का था, साक्षी से गुड्स खरीदा था, वो भी ऑन क्रेडिट था, तो इसका इफेक्ट कैश बुक को नहीं जाएगा, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी. और ये 18 तारीख का, 18 तारीख और ये 5 तारीख, 5 जनवरी को और ये 18 जनवरी को, ये दोनों का एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. और जो इसका इफेक्ट है वो कहाँ पे जाएगा, वो सब्सिडरी बुक में जाएगा. उसके बाद में ट्रांजेक्शन ऑन 20th January 2018, कार्टेज पेड इन कैश. कार्टेज पेड किया, यहाँ पे पेड वर्ड है. ये पेड वर्ड है तो पेमेंट में हमको इसको एंट्री करना है कैश बुक के पेमेंट साइड में. मतलब है कि क्रेडिट साइड को इसका एंट्री होगा और पेमेंट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कार्टेज अकाउंट. बाय कार्टेज अकाउंट. और इसका जो ये पेमेंट कैश से हुआ है तो ये जो 500 रुपीज है, इसका जो इफेक्ट है हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, कैश कॉलम में. वी हैव टू शो द इफेक्ट ऑफ दिस टू द कैश कॉलम. तो कैश कॉलम में हम लोग इसकी एंट्री 500 मारेंगे. देन उसके बाद में ट्रांजेक्शन ऑन 22 जनवरी 2018, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी. ये शिवाजी से कैश मिला है, रिसीव्ड कैश मिला है, तो ऑफकोर्स ये रिसीव्ड है तो रिसीव्ड साइड में दिखाएंगे इसका एंट्री हम. We have to make the effect of this to the cash column, cash receipt side, and receipt side we have to write there to Shivaji account. और कैश है तो ऑफकोर्स ये 12,000, इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, कैश कॉलम में करेंगे. We have to make the effect of this 12,000 to the cash column. उसके बाद में 27 Jan 2018, कमीशन रिसीव्ड. अगेन द वर्ड रिसीव्ड इज देयर. यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये चेक से मिला है या कैश से मिला है. ओनली इंफॉर्मेशन इज देयर, कमीशन रिसीव्ड. इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है मोड ऑफ पेमेंट का, तो वी हैव टू ट्रीट दैट ये हमको कैश में मिला है. तो ऑफकोर्स वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ दिस कमीशन टू द रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक. कैश बुक के रिसीप्ट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट. और ये 5,000 का जो इफेक्ट है वी हैव टू मेक टू द कैश कॉलम, और ये 5,000 का इफेक्ट हम लोग कैश कॉलम में करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 जनवरी 2018, ड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज फॉर पर्सनल यूज. यहाँ पे दो बातें आप समझ लीजिए. यहाँ पे पर्सनल यूज दिया है, तो पर्सनल यूज को हम लोग अकाउंटिंग में बोलते हैं ड्रॉविंग. ड्रॉविंग को हम लोग पेमेंट साइड में दिखाएंगे. दिस विल कम टू द पेमेंट साइड क्योंकि हमने कैश को विड्रॉ किया है, तो इसका इफेक्ट पेमेंट साइड को जाएगा. वी हैव टू मेक द इफेक्ट टू द पेमेंट साइड. पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड.
क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, और ड्रॉइंग अकाउंट, और ये जो अमाउंट है 2000, इसका इफेक्ट हम लोग कहाँ पे मारेंगे, कैश कॉलम में मारेंगे, पेमेंट साइड के। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, यहाँ पे दो बातें आपको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन, इफ द ट्रांजेक्शन इज लाइक दैट, ड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे सपोज अगर ऑफिस यूज होता, देन व्हाट वी हैव टू सपोज डू, अफकोर्स अगर यहाँ पे ऑफिस यूज होता तो इट विल हैव कॉन्ट्रा एंट्री, फिर वो कॉन्ट्रा एंट्री होती, क्योंकि फिर हमको पेमेंट तो दिखाते ही, पेमेंट को दिखा के उसके बाद में हमको उसकी एंट्री रिसिप्ट में भी मारनी पड़ती। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देना है, अगर पर्सनल यूज है तो फिर सिंगल इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर पर्सनल यूज के जगह पे यहाँ पे ऑफिस यूज दिया होता तो फिर उसकी कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती थी हमको। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती, क्योंकि वो ऑफिस यूज के लिए था। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पर्सनल यूज है तो वहां पे ड्राइंग दिखाना है आपको पेमेंट साइड। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको थ्योरेटिकली सारे ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सिर्फ आपको सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांजेक्शन ऑन 5 जैन और 18 जैन, ये दोनों का इफेक्ट हमको नहीं करना है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ आएगा कौन से तारीख का, 14th जैन का जो ट्रांजेक्शन है इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री इसमें होगा। वी हैव टू मेक वन कॉन्ट्रा एंट्री इन दैट। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, देन यू हैव टू पुट केयर ऑन दैट। So now we have to prepare the column first. We are knowing that two sides we have to prepare, the receipt side and payment side. First column, debit side, receipt side, we have to prepare date column. You have to remember the name of the column also. So this is receipt column, and after receipt then there is a receipt number column, and then after receipt number there is a column for LF, and then after LF we have a column for cash. After cash then there is a column for bank. This column is for banking transaction.
And then now after that, again we have to prepare the column for date for payment side. And then we have to make the column for payment. And then after that we have to make column for voucher number, that is V number. And then we have to draw the column again for LF. And then there is a two different column, cash and bank. So this is total column, and now we have to write the name of column. Here we have to write two column cash book. And above to that we have to write in the books of name of the firm, we have to write here. And the first column, this is date. Second column is the receipts. R number, LF. This is cash column. And this is bank column. Again date. And then payments. And here V number means voucher number. Again LF and cash and bank. Now the transaction number first is there. Started business with cash rupees 1,20,000. So we have to show the effect to the receipt side. Here we have to write the year 2018, Jan 1st to capital account. And in cash column we have to write 1,20,000. And then after that, transaction on 3rd Jan, that is cash paid into Bank of Baroda 50,000. So here payment side we have to show that effect of that 2018 Jan 3rd by Bank of Baroda. And we have to make the effect to the cash column, that is 50,000. And then after that, purchase goods from Sakshi on credit, that is transaction on 5th Jan. Purchase goods from Sakshi on credit. And I told you this transaction, suppose we should not make the entry to the cash book because this is credit transaction. So the transaction on 6th Jan 2018, sold goods to Diwakar and received a bearer check. 6th sold किया है, तो receipt side में we have to make the effect to the receipt side. Sold goods to Diwakar. So here we have to write to sales account.
and bearer check is there, so we have to make the effect of this to the cash column. We have to make the effect to the cash column, that is 20,000, because the check is bearer and therefore we have to make the effect to the cash column. And then after 6, the transaction on 10th Jan, paid to Sakshi cash rupees 20,000. So this is paid to Sakshi is there, so we have to make the effect to the payment side, that is Jan 10. So here we have to write by Sakshi account. So 20,000 we have to make effect to the cash column because that is payment made by the cash. And now the transaction on 14th Jan 2018, check received on December 6th 2018, deposited into bank. So earlier I told you this transaction will have contra effect. इसका contra effect होगा क्योंकि हमने 6 का जो इफेक्ट है वो हमने कैश में यहाँ पे, ये देखो कैश कॉलम में 20,000 हमने इसकी एंट्री किया है, तो इसका इफेक्ट खत्म करना है। अभी बिना इसका इफेक्ट खत्म किए हुए डायरेक्ट हम लोग रिसिप्ट में यहाँ बैंक में डायरेक्ट एंट्री नहीं मार सकते। लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन प्लीज, याद रखो डायरेक्ट हम इसको रिसिप्ट में बैंक कॉलम में नहीं दिखा सकते जब तक कि ये कैश का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट पेमेंट में दिखाएंगे नहीं, तब तक इसका इफेक्ट खत्म नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, अगर मैं डायरेक्ट यहां दिखाता हूं 20,000 तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी कैश बुक में? दिस इज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। अगर मैं इसका पेमेंट में एंट्री यहां न दिखा करके नहीं दिखाता हूं और यहाँ पे फिर 20,000 मैं डायरेक्ट बैंक में दिखाता हूं यहाँ पे, तो इससे क्या इफेक्ट गिरेगा कैश बुक में? इससे इफेक्ट गिरेगा कि आपके कैश बुक में एक ही ट्रांजैक्शन का 40,000 का रिसिप्ट हो जाएगा। एक तो आपको 20,000 का रिसिप्ट कैश में दिखेगा और उसी ट्रांजैक्शन का 20,000 का रिसिप्ट बैंक को दिखेगा। मतलब ट्रांजैक्शन एक है लेकिन 20,000 के बदले उसका 40,000 का रिसिप्ट दिखेगा। मतलब 20,000 से आपका जो बैलेंस है वो कैश बैलेंस ज्यादा दिखेगा 20,000 से। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हमको ये 20,000 का क्या दिखाना है, पेमेंट पहले दिखा करके और फिर ये 20,000 के कंसेप्ट को खत्म करना है। ये 20,000 के इफेक्ट को खलास करने के लिए यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमको पेमेंट साइड में दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में लिखेंगे 20,000। और फिर उसके बाद में इसका डेट है 14, तो यहाँ पे 14 जैन लिखना है और फिर इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपको रिसिप्ट में दिखाना है टू कैश अकाउंट। और अब ये 20,000 हम कहाँ पे दिखा सकते हैं? बैंक में। वी कैन शो टू द बैंक कॉलम ये 20,000। और इसका जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है सी, कैपिटल सी, वो एलएफ में दिखाना है। दैट वी हैव टू शो टू द एलएफ साइड और ये भी एलएफ में दिखाना है। तो ये सी, ये कॉन्ट्रा इफेक्ट का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे भी डेट हमको 14 लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
18th को सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। मैंने बताया था ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। सपोज वी शुड नॉट मेक द इफेक्ट टू द कैश बुक बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट। उसके बाद में है ट्रांजेक्शन 20 को, 20 जैन को, कार्टेज पेड इन कैश। कार्टेज पेड किया तो इफेक्ट ऑफ दिस वी हैव टू शो टू द पेमेंट साइड 20 बाय कार्टेज अकाउंट। कैश में है, कैश में पेड किया है तो इसका इफेक्ट होगा 500 कैश कॉलम। उसके बाद में है ट्रांजेक्शन ऑन 22 जैन को। रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी दैट इज 12,000। तो इसको हम लोग रिसिप्ट में दिखाएंगे। रिसिप्ट साइड में लिखना है टू शिवाजी अकाउंट, डेट लिखना है पहले 22, और कैश मिला है तो 12,000 का जो इफेक्ट है वो कैश कॉलम में आएगा। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड। ये भी रिसीव्ड का ट्रांजेक्शन है, इसका भी इफेक्ट रिसिप्ट में जाएगा। कैश बुक के रिसिप्ट साइड में डेट लिखेंगे 27 टू कमीशन अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कैश में आएगा 5,000। उसके बाद में 30 को ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ किया है बिजनेसमैन ने कैश को पर्सनल यूज के लिए, तो इसका इफेक्ट हमको पेमेंट साइड में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे पेमेंट साइड में 30, और फिर यहाँ पे लिखना है जैसे कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। सो हियर वी हैव टू मेक द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग टू बाय ड्राइंग अकाउंट। और कैश विड्रॉ किया है तो ये 2,000 का इफेक्ट किसमें आएगा, कैश में आएगा। ये हमने टोटल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मारा है, अभी टोटल एंट्री किया हुआ है। उसके बाद में हमको टैली करना है। ये टैली आपको होमवर्क रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। टैली कॉलम यहाँ पे करना है आपको दोनों साइड में। ये आपको होमवर्क करना है। हाईएस्ट टोटल जो है ये 1,20,000 और ये 20,000 1,40,000 और 12,000 1,52,000 और ये 5,000 1,57,000। ये हाईएस्ट टोटल आपको ये दोनों साइड में लिखना है। 1,57,000 1,57,000 टोटल आपका करेक्ट होना चाहिए। ये 20 40 प्लस 10 50, ये 52 और 52 और 5
दैट इज 57, 1,57,000 टोटल दोनों साइड में, और ये बैंक का 20,000, यहाँ पे 20,000। उसके बाद में आपको माइनस करके यहाँ पे निकालना है बाय बैलेंस CD, और ये यहाँ पे आएगा 31, और यहाँ पे आपको बैलेंस लिखना है, और इसका भी बैलेंस यहाँ पे लिखना है। बैंक का कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे 20,000 बैलेंस आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद में ये जो है आपको यहाँ जनवरी के बाद फरवरी लिखना है, फरवरी 1 को यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस BD, और यहाँ पे आपको बैलेंस दोनों लिखने जो यहाँ पे आएंगे। तो ये होमवर्क है आपको। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सम न्यू ट्रांजेक्शन। Here one thing we have to forget to make the effect of transaction on 3rd January, that is cash paid into Bank of Baroda 50,000. So it will have contra effect. So this actually we have to make the payment from, we have to show the payment from cash 50,000. So we have to make the effect here on 3rd receipt side to cash account, and in bank column we have to make here contra effect 50,000, because बिजनेसमैन ने पेड किया है, बैंक में आया वो, तो यहाँ कैश से हमको पेमेंट दिखाना है, और फिर सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे हमको रिसीप्ट में दिखाना है 50,000। ये ध्यान देना है। उसके बाद अभी आपको टैली करने का है, यू हैव टू टैली द प्रॉब्लम। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट रह गया था, तो इस पे ध्यान देना है आपको। इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे LF में आपको C लिखना है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे C लिखना है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कैश निकला यहाँ से 50,000, और वो कहाँ पे आ गया, बैंक में आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा।